રાગ મારું ભૂડા જીવ જાગજે રે, કાંઈ ધની તને ચરણ પસાયે, તું ભરમ ઉડાડજે રે. આપના નિંદ્રા કેમ કરું રે, નિંદ્રાનો નથી લાગ, ભરમની નિંદ્રા જે કરે, કાંઈ ત્યાંનું મોતો અવાગ. આ જોગબાઈ છે આપણી, નહીં આવે બીજી વાર, હાથ તાલી દીધે જાય છે, ભૂડા કાન કરે હજી સારા. તને રે આપણામાં આવ્યા, ભૂડા કાન જાગે જીવા, પેરે પેરે તુને પૃથ્વ્યો, તું હજી કરે કાંધીલા. તને ધનવટ જે કરી, તું ત્યાં જોને બિચારી તે, આ પાપણીને પરહરી, તું કાન કરે સ્નેહ. આપણને તેડવા આવ્યા આ દુસ્તર માયા માએ, ઓળખીને કાં ઓસરે, ભૂડા એમ થયો તું કાએ. તનીએ આપણે શું જે કરી રે, તું ત્યાં જોને બિચારી મન, કોડી તે હાથથી પરી કરી, તુને દીધું છે હાથ રતન. જીવડા તુને કારણ કે કરે, ભૂડા કૂદો દિન અનેક, જોવંતા જોગવાઈ ગઈ, ભૂડા હજીએ તું કાન ચેતા. આપન ઉપર અતિ ગણી રે, દયા કરે છે આધાર, આપને કાજે ધર્યા, ભૂડા હજીએ તું કાન વિચાર. પરમ ભૂડો તમે પરારો, જેમ થાય અજબાલું અપાર, વચન બાલાજી તણે તું મુલગા સુખ સંભાર. આ બાલો તે આવ્યા એ સુખ તન દાતારા, આપણમાં તે અજ બેઠા, જોઈ અજબાલો સંભાર. દુર્મતી તું કાં થયો, હું તો પાડું બુમા અપાર, અહીં આવ્યા ન ઓળખ્યા, પછી કે પેરે મોએ ઉપાડ. આંખ ઉગાડી જોજુએ, જીવ લીધે તે લાભ અનેક, અહીં પણ સુખ ગણ માનીએ, અને આગળ થાય બસે કાં. આ અજબાલુ જો જોઈએ, જીવ તારતો મમો તો સાર, બાલાજીને ઓળખે તો તું નવો મૂકી નિર્ધાર. બાલો બદેશે આવી બી મળ્યા, કાંઈ આપણને આવાર, દુઃખમાં સુખ માનીએ, જો તું ભરમની નિંદ્રા નિવાર. આ જોગવાઈ છે કિન પાની બલ, કેટલું તુને કહે ભાઈ, પણ અચરજ મને થાય છે, જે જાણું ધન કેમ જાય. આગળ આપણે શું કર્યું, જ્યારે અજવાલે થઈ રાત, આતા બાલોજીએ ભલી કૃપા કરી, ત્યારે તરત થયું પ્રભાત. એ બડી વાત દેખી કરી, તે ત્યાં જોયું તારી દ્રષ્ટ, હજી તું ભરમમાં ભૂલ્યો, તુને કેટલું કહું પાપિષ્ટ. અજબાલે બાલો ઓળખ્યા, ત્યારે પાછળ રહ્યો શું, જાની બુજીને મૂળ થયો, ભૂડા એમ થયો કાં તું. પેરે પેરે મેં તુને કહ્યું રે, સુન રે ધનીના વચન, અરખીના બાલો ન બિસરે, જો તું જુએ બિચારી મન. અનેક વચન તુને કયા, માન એકનો કરે વિચાર, અર્ધ લવે તારો અર્થ સરે, ભૂડા એ બધું તું કાન કે ઓરાવ. હવે રે તું ને હું જે કહ્યું, તે તું સાવલ દૃઢ કરી મન, પચ બીસ પગ છે આપણા, તેમાં ઝીલ જે રાત ને દિન. એમાં એથી રાખે નિસરી, પલ માત્ર અલગ થાય એક, મનના મનોરથ પૂર્ણ થશે, ઉપજશે સુખ અનેક. સાખ્યાત તની સેવા કર રે, ઓળખીને અંગા, શ્રીધામ તન ધની જાણજે, તું તાર કે કરે તેમાં ભંગા. મુખથી સેવા તુને શીખવું, જો તું અંતરાળો તાલ, અનેક વિધ સેવા તની તુને ઉપજશે તત્કાલ. પહેલે ફેરે આપન આવ્યા, તે તો બાલે કહ્યું છે વિવેક, તે ત લાભ લઈને જાગ્યા, હવે આપણ કરું રે વિષેક. પહેલે ફેરે થયું આપણને ગોપદ બસ સંસાર, એને પગલે ચાલીએ, જો તું પહેલો ફેરો સંભાર. એટલા માટે આજ બાલોજીએ કીધું આવાર, નરસૈયા બચન પ્રગટ કીધા, કાંઈ બ્રજતના વિચાર. કહે ઇન્દ્રાવતી નરસૈયા વચન, જો જોઈએ કરીને ચિતા,
તનીએ જે ધન આપ્યું કાંઈ કરી આપણ નહીં ત કાંઈ કરી આપણ નહીં ત કહે શ્રી ઇન્દ્રાવતી નરસૈયા વચન જો જોઈએ કરીને ચિતા તનીએ જે ધન આપ્યું આ કાંઈ કરી આપણ નહીં ત કાંઈ કરી આપણ નહીં ત चौपाई 29 प्रकरण 3 चौपाई 135। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास को तेसरो प्रकरण को हिंदी छाया इस प्रकार था। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हे दुष्ट जीव, अब तू जागृत हो जा। प्रियतम धनी के चरणों की कृपा द्वारा अपनी भ्रम रूपी निद्रा को त्याग कर अपने आप को मूल स्वरूप को पहचान ले। अब हम सोते रहेंगे तो काम कैसे चलेगा? यह समय नींद अज्ञान में पड़े रहने का नहीं है। जो भ्रांति के कारण नींद में डूबे रहेंगे उनका यह बड़ा दुर्भाग्य होगा। यह मानव शरीर दूसरी बार प्राप्त नहीं होगा। एक एक श्वास के द्वारा यह बीता जा रहा है। इसीलिए ये दुष्ट जीव, अब भी तू सावधान क्यों न होता? प्रियतम धनी हमारे पास पधारे, तथापि ये दुष्ट तू सचेत क्यों नहीं होता? धनी ने तो बारंबार अनेक प्रकार से तुझे समझाया, अब तू विलम्ब क्यों कर रहा है? प्रियतम धनी ने जिस प्रकार तुझे स्वीकार किया और तेरी रक्षा की, हे जीव, वह तू स्वयं विचार पूर्वक देख। इस दुष्ट माया को छोड़कर अपने प्रियतम धामधनी के साथ क्यों प्रेम नहीं करता? सदगुरु धामधनी हम लोगों को बुलाने के लिए परम नाम से इस दुस्तर मायामय संसार में पधारे। उनका परिचय प्राप्त होने पर भी तू किस कारण से उनसे विमुख हो रहा है? हे मूर्ख जीव, तू ऐसा दुष्ट क्यों हो गया? धामधनी ने हम पर जो कृपा की है उसे मन से विचार कर देखो। कौड़ी के समान तुच्छ माया के हाथ से छुड़ाकर अखंड तारतम ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न तुझे दिया है। हे जीव, अज्ञान रूपी निद्रा के बस में पड़कर क्यों सोता रहता है? हे दुष्टा, बहुत दिन तूने नींद में व्यतीत किया। देखते देखते यह जीवन निरर्थक व्यतीत हो रहा है, फिर भी तू सावधान क्यों नहीं होता? हमारे प्राणधार सदगुरु धनी हम पर असीम कृपा करते हैं। हमारे लिए ही उन्होंने मानव शरीर धारण किया है। हे दुष्ट जीव, तू अब भी विचार क्यों नहीं करता? हे जीव, इस भ्रांति और अज्ञान का त्याग कर ले ताकि अंतरात्मा में धनी के अखंड ज्ञान का प्रकाश फैल जाए। प्रियतम धनी के अमूल्य वचनों को ग्रहण करते हुए तू मूल प्रेम धाम के सुख को याद कर। अखंड सुख देने वाले प्रियतम धामधनी अक्षरातीत इस संसार में सदगुरु के रूप में आ गए हैं। वे ही हमारे हृदय में बैठे हैं। तारतम ज्ञान के फैले हुए इस प्रकाश में उन्हें देखकर तू अपने आप को संभाल ले। हे जीव, तू मंदमती कैसे बन गया? मैं तुझे बारंबार पुकार रहा हूँ। धामधनी यहाँ पधारे और तूने उन्हें पहचान तक नहीं। अब तू परम धाम में उनके समक्ष अपना मस्तक कैसे उठा पाएंगे? यदि अंतरचक्षुओं को खोलकर देखोगे तो हे जीव, तुझे यहाँ मानव शरीर का सदुपयोग करके अधिक लाभ होगा। इस श्लोक में भी अपने आध्यात्मिक सुख प्राप्त कर ले। परम धाम में तो विशिष्ट सुख मिलने ही वाले हैं। यदि सदगुरु द्वारा प्राप्त इस ज्ञान के प्रकाश को तुम देखेगा तो हे जीव, तारतम ज्ञान ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ सार तत्व है। यह तुझे ज्ञान हो जाएगा। इस ज्ञान के द्वारा सदगुरु की पहचान प्राप्त होने पर तू निश्चित रूप से उनके चरण कमलों को नहीं छोड़ेगा। प्रियतम धनी विदेश संसार में आकर इस बार हम सबसे मिले, इसलिए उन्हें पहचान कर अब अज्ञान रूपी निद्रा को हटाओगे। इस दुखपूर्ण संसार में भी सुख की अनुभूति होगी। यह मानव शरीर पानी के बुलबुले की भांति क्षणभंगुर है। तुझे इस संदर्भ में कितना कहा जाए। मुझे आश्चर्य तो इसीलिए हो रहा है कि जानकारी होने पर भी सदगुरु रूपी अखंड धन को हाथ से कैसे निकल जाने दिया। जब सदगुरु थे उस समय हमने क्या किया?
तारतम ज्ञान के प्रकाश में भी रात हो गई थी, अर्थात हमारी जानकारी में ही सद्गुरु अदृश्य हो गए। यह तो हमारे प्रियतम सद्गुरु ने हम पर पुनः कृपा की है कि वे हमारे हृदय में विराजमान हुए और तुरंत ही ज्ञान का प्रभात हो गया। इतनी महत्वपूर्ण घटना को तूने अपनी आंखों से देखा है, समझा है, फिर भी अभी तक तू अज्ञान में भटकता फिर रहा है। हे दुष्ट जीव, अब मैंने तुझे कितना समझाऊं। इस ज्ञान के प्रकाश में जब हमने प्रियतम धनी को पहचान लिया तो बाकी क्या बचा। तू तो ज्ञान बुझकर मूर्ख बन गया। हे पापी जीव, तुम में ऐसा परिवर्तन क्यों आ गया। हे जीव, मैंने तुझे बारंबार अनेक प्रकार से समझाया कि धनी के वचनों को श्रवण कर। यदि तूने इस तथ्य का मन से विचार किया होता तो एक क्षण के लिए भी धनी को न भूलता। हे जीव, सद्गुरु ने तुझे अनेक बातें कही है, उन पर विचार कर। उनमें से एक तो क्या आधे अक्षर पर भी विचार कर लिया होता तो तुम्हारे सारे काम सिद्ध हो गए होते। फिर भी हे दुष्ट, मुझसे इतना कुछ क्यों कहलवाते हो। अभी मैंने तुझे जो कुछ भी कहा उसे मन को दृढ़ करके श्रवण कर। ब्रह्म धाम के 25 पक्ष हमारे है, तू उन्हें को मध्य रात दिन आनंद पूर्वक विहार कर। इन 25 पक्ष ब्रह्म धाम से तू श्रोता को एक क्षण के लिए भी पृथक मत कर। तेरे मन के सब मनोरथ पूर्ण होंगे और तुझे धाम के अनंत सुख प्राप्त होंगे। हे जीव, सद्गुरु के स्वरूप को पहचान, उन्हें साक्षात धामधनी समझकर उन पर श्रद्धा रख और उनकी सेवा में कमी न आने दे। हे जीव, सेवा के विषय में मौखिक उपदेश देते हुए मैं तुझे क्या कहूँ। यदि तू अंतरात्मा से अज्ञान का आवरण दूर करेगा अर्थात ब्रह्म मुक्त होगा तो अनेक प्रकार की सेवाओं के भाव तेरे हृदय में तत्काल प्रकट होंगे। प्रथम अवतार ब्रज और रास में हम लोग गोपियों के रूप में आए थे। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन हमारे प्रियतम सद्गुरु ने किया है। उस समय थोड़ा लाभ लेकर हम क्षण मात्र के लिए परम धाम में जाग गई थी, फिर इस ब्रह्मांड में आई। अब इस जागने के ब्रह्मांड में उससे भी अधिक लाभ लेना है। प्रथम अवतार में ब्रज से रास की ओर जाते समय हमें यह संसार गाय के बछड़े के चरण चिन्ह पर भरे हुए पानी के समान तुच्छ लगता था। हे जीव, उस प्रसंग को तू याद कर। अब भी हमें उसी मार्ग पर चलना है। इसीलिए सद्गुरु ने इस बार भी उस मार्ग को प्रकाशित किया है। ब्रज की इन बातों पर विचार करने के लिए सद्गुरु ने भक्त नरसिंह मेहता के वचनों द्वारा भी हमें स्पष्टता पूर्वक समझाया है। श्री इंद्रावती कहती है, हे सुंदर साथ जी, यदि हम नरसिंह मेहता के वचनों को एकाग्र चित्त होकर सुनेंगे तो स्पष्ट होगा कि सद्गुरु धनी ने तारतम रूपी धन देकर हम पर अत्यधिक उपकार किया है। श्री इंद्रावती कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, यदि हम नरसिंह मेहता के वचनों के एकाग्र चित्त होकर सुनेंगे तो स्पष्ट होगा कि सद्गुरु धनी ने तारतम रूपी धन देकर हम पर अत्यधिक उपकार किया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई 29 प्रकरण 3 चौपाई 135। राग धन्यसरी। प्रेम सेवा बाले प्रगत की दी प्रजातनी आभार। वचन विचारिने जो जोइए काई नर संयतन निर्धार। श्री धाम तन सात सांबलो हूँ तो कहूँ छु लागिने पाए। जेरे मनोरथ किदापने ते पुराण येनी पेरे ठाए। ब्रजमा कीदी आपन बाटड़ी
चित सगली माये स्नेह काम करता अति गण पन किन नओ छाड्यो ने विविध पेरे श्रृंगार जो करता मन उल्लास जथाए मन न मनोरथ पूरन करता रंग बर रैनी बिहाए उठता बेसता रमता बालोचित चिते अलग न थाए ज्यारे बन पदारता त्यारे किन वरसा सो थाए माओ माए विचार ज करता बात ज करता ये आत्म सौनी एक ज दिसे जुज बीते दिसे दे निशा दिवस बालाजी सो बातो राम त करता जाए किन मात्र जो अलगा थैये तो बिछड़ो किन न खमाए विविध विलास बालाजी सो करता पुराण मनोरथ थाए ज्यारे बाछर डालै बन पधारे त्यारे रोवन्ता दिन जाए दान लीलानी राम त करता माथे मई माखन नो भार वचन रङ्गन उचला बालता रमता बन मन्झार ब्रज नर सैया प्रागत किदु अति गण वचन विवेक ये वचन जोइने चालिए तो आपन ठैये विषेक ब्रजलीला अति मोती छे जो नर सैया वचन प्रमाण ये पगला सर्वे आपण तमे जानी सको चे जान कहे श्रीन्द्रावती सुनो रे साथ जी यहाँ विलम्ब की जानी नहीं बार ये अज बालु कि तुम्हारे बाले आपन ने आभार आपन ने आभार कहे श्रीन्द्रावती सुनो रे साथ जी यहाँ विलम्ब की धनी नहीं बार ये अज बालु कि तुम्हारे बाले आपन ने आभार आपन ने आभार चौपाई 12 प्रकरण 4 चौपाई 147। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास को चौथो प्रकरण को हिंदी छाया। प्रियतम सतगुरु धनी ने यहाँ इस जागनी के ब्रह्मांड में ब्रज की प्रेम लीला और छाया का प्रेम लीला और सेवा का स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। इस संदर्भ में भक्त नरसिंह मेहता के वचनों पर भी निश्चित रूप से विचार कर लीजिए। हे अखंड प्रेम धाम की ब्रह्म आत्माओं सुनिए, मैं चरणों में प्रणाम करके निवेदन करता हूँ कि प्रेम धाम में हम सब ने जैसा खेल देखने का इच्छा की थी उसी के अनुरूप सारी कामनाएं पूरी हुई। ब्रजमंडल में हम ब्रह्मात्माओं ने जो लीलाएं की वे सब प्रेममयी थी, अर्थात वहाँ तो सबके बीच प्रेम ही था। गृह कार्य में व्यस्त रहने पर भी प्रियतम धनी के प्रीति का स्नेह क्षण भर के लिए भी नहीं भूलती थी। विविध प्रकार के श्रृंगार करने पर हमारे मन में विशेष उत्साह पैदा होता था। प्रियतम धनी के साथ रहकर
सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए परमानंद में रात व्यतीत हो जाती थी। उठते बैठते खेलते किसी भी समय प्रियतम धनी श्री कृष्ण हमारे चित्त से नहीं हटते थे, अर्थात उनका ध्यान स्वरूप हृदय में छूटता नहीं था। जब वे गाय और ग्वालों के साथ वन में जाते थे तब एक क्षण भी हमारे लिए वर्षों के समान होता था। परस्पर मिलकर हम कोई भी विचार करती थी तो प्रियतम श्री कृष्ण के विषय में ही करती थी। हम सब की आत्मा एक ही थी, किंतु बाह्य दृष्टि से सबके शरीर भिन्न भिन्न दिखाई देते थे। रात दिन ब्रज में प्रियतम श्री कृष्ण के साथ ही बातें होती रहती थी और उनके साथ क्रीड़ा करते करते दिन बीत जाता था। यदि पल भर के लिए भी हम प्रियतम से अलग होते तो वह क्षण भर का वियोग भी सहन नहीं होता था। प्रियतम धनी श्री कृष्ण के साथ अनेक प्रकार के आनंद लेते हुए हमारी मनोकामनाएं पूरा हो जाती थी। जब श्री कृष्ण गाय बछड़ों को लेकर वन में जाते तो पूरा दिन उनका स्मरण करते और रोते हुए व्यतीत होता था। दही मक्खन बेचने जाते हुए मार्ग में दान लीला की रामट करते समय हमारे सिर पर दही और मक्खन की मटकी रखी हुई होती थी। ऐसे समय परस्पर प्रेम पूर्वक उल्टी सीधी हास्य विनोदपूर्ण बातें करती हुई हम वन प्रदेश में खेलती थी। भक्त नरसिंह मेहता ने विवेक पूर्वक ब्रज की लीलाओं के गीत गाए हैं। उनके वचनों पर विचार कर चलेंगे तो हमें ब्रज लीला का विशेष महत्व समझ में आएगा। ब्रज की लीला अत्यंत महत्वपूर्ण है। नरसिंह मेहता के वाक्य इसके साक्षी है। हे ब्रह्मात्माओं, यदि आप जानना चाहती है तो यह हमारा अपना ही मार्ग है। श्री इंद्रावती के रूप में स्वामी जी कहते हैं, मैं मेरी धाम की अंगना हूँ, सुनिए। अब यहाँ विलम्ब करने का समय नहीं है। इसी समय मेरे धनी सदगुरु ने हम सब के लिए यह ज्ञान का प्रकाश फैलाया है। इंद्रावती के रूप में स्वामी जी कहते हैं, हे मेरी धाम की अंगना हो, सुनिए। अब यहाँ विलम्ब करने का समय नहीं है। इस समय मेरे धनी सदगुरु ने हम सब के लिए यह ज्ञान प्रकाश फैलाया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई 12 प्रकरण 4 चौपाई 147। राग धन्यासरी। रास को पांचों प्रकरण। एनी पगले आपन चालिए काई पगलाए रे परमान सुंदर साथ जी पहले फेरे आपन जेम निसरिया तमे जान थाओ ते चिताणी ने रंग माणो सुंदर साथ जी। रास नरसे या रे नव बरन भ्यो मारे मन उत्कंता ये हा चरण पसाए रे बाला तने तमे साबलो कहूँ त्यहा। श्री धनिये जे रे बचन कया ते मैं साबल्या रे अनेका पण मेरे मारा गजा सारू काई ग्रह्या छे लवलेसा। शरद निसारे पूनम तनी आवे ते आसो रे मासा सकल कलानो चंद्रमा एनी रजनीए की डोरे रासा। रास तनी रे लीला कहूँ जे भरिया आपने पाए निमकना की धीरे निसरता तथा किन तेने रे ताए। संध्या ने समेरे बेन बाइयो काई वृंदावन मंजारा एने समय सौ मुक्यू तेने आड़ ना आवे रे संसार। नहीं तो कुलाहल ये बड़ो तो पन चितड़ा बेजा रे प्रमाण साठ सौये रे बेन साबल्यो बीजो श्रवण तण गुण जान। कोई सखी रे उती गाय डोहती दूध गोलियो रे हाथ माए एने समय बेन थई बलबनी पड़ी गयो गोनियो रे तेणे ताए। कोई सखी रे काम करे घर मधे आदो उपो ससर पत जे
બેન સુની રે પાટું દઈ નિસરી એની દૃષ્ટમાં સ્વરૂપ સ્નેહ કોઈ સખી રે બાતો કરે પતસું ઊભી દોરાવે રે બાલ એની સામે બેન થઈ બાલ બની પડી ગયો બાલ તેણે તાલ કોઈ સખી રે ઊંચી પ્રીસાને હાથ થાલી પ્રીસે છે ધાન એની સામે બેન થઈ બાલ બની પડી ગઈ થાલી તે તાણ કોઈ સખી રે એની સામે નિસરતા એક પગ પાણા રે માએ બીજો પગ પતનારું જે પર એની દૃષ્ટ ના આવ્યું રે કોઈ ક્યાંય કોઈ સખી રે બેગે બસરતા પડ્યો પડે સસર ત્યાંય આકાર બહે રે ઘણ બે ઉતાવલા ચિત્ત દઈ બેઠું બેલાજી માએ માતા પિતા પટ સાસુ સસર રોમનતાન સુનિયા રે બાલ બાયને બેગે રે બસુતીઓ બેન સાવલતા તત્કાલ વસ્ત્ર બિના સખી જે ન હતી તેને નવો સંભાળ્યો રે અંગ બેન સાવલતા રે બાલા તની એની બેગમાં ન કીધો રે ભંગ કોઈ સખી રે હુતી નવો રાવતી હાથ લોતી નામે છે જલ સુની સ્વર પડ્યો લોટો અંગા ઉપર ન બોલાનો ચિતડે વ્યાકુલા ગોપડ બચરે એની સામે સુખજી એની રડાર્યો તે સારા ત્રાટ કડે રે ત્રટકા કર્યા કાંઈ બંધા હતા જે સંસાર તના રે કામ સર્વે કરતા પણ ચિત્તમાં ન ભેદ્યો રે પાસા બિલમાં ન કીધી રે બસુતતા એ તામસીઓના પ્રકાશ કોઈ સખી રે શૃંગાર કરતા સુનીતિને બેન શ્રવણ પાયના ભૂષણ કાને પહેર્યા કાન તના રે ચરણ એક નૈને રે અંજન કર્યું બીજો રહ્યું રે એમાં બેનનો સ્વર સાંભળ્યા પછી રાજસીય રહ્યો રે કેમ રાજસીય રે કાંઈ કનૈને દીઠો પણ વિચાર કરે તો થાય બેડા તામસીય રે મોહ બળ થયો રાજસીય ન મૂક્યો તેનો કેળા સાતસીય રે વિચાર કર્યો તેને આડા દેવો રાના રે બાર કુટુંબ સગારે સૌ ટોલે મળી ફરીને બોલ્યા ભર તાર ત્યારે મનમાં એ વિચાર કર્યો એકા આડા થાય દોરી જન એ શું જાને બર નહીં એનું બાલયો તો જાત બારે છે બન ધીક ધીક પડો રે આ સંસારને કાના ઉત્યારે આગી ન બ્રહતામસરે બેલા થયા ત્યારે અંગડા થયા રે પતન બાસનાઓ બહીઓ રે અતિ બેગમાં વાર ન લગી રે લગાર બસ્ત ખરી રે કેમ રહે બાલા બિના તેણે સાત સ્તમો કીધો શૃંગાર પ્રજાબંધુ કુમારિકાઓની કઈ નહીં સુખજીએ વિગત તે કેમ સંસેરા કુમારા સાધને તેની કરે દઉં જુજાવી જુગાતા જેતલી નહાતી કાર્તિક કુમારિકા એ બાસના નહીં ઉતપન્ન એની લજા લોપાવી હરીને બસ્તારા તે શું કીધો વાય ડોવસન જે સખી ઉતી કુમારકા કર નહીં ત્યાંના અંગા સન્ય બલ દયા લીધી તની તની તે મળીને ભલી સાતને રંગા સાત દોડે રે ઘનવે આકલ મનની ના પહોંચી આમ જોગમાયા સામી આવી જુગત શું શૃંગાર કીધો એને થામ સુનજી સાત કહે શ્રીન્દ્રાવતી જોગમાયાનો જુઓ વિચાર એકેની પેરે હું બર નભું મારા સાત તન શૃંગાર વચન ધની તનામય સાંભળ્યા મારા ગજા સારું રે પ્રમાણ એક શ્યામાજીને બર નભું બીજો સાત સકલ એની પેરે જાન બીજો સાત સકલ એની પેરે જાન વચન ધની તનામય સાંભળ્યા મારા ગજા સારું રે પ્રમાણ એક શ્યામાજીને બર નભું બીજો સાત સકલ એની પેરે જાન બીજો સાત સકલ એની પેરે જાન ચોપાઈ 31 પ્રકરણ 5 ચોપાई 178 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास को 5वें प्रकरण को हिंदी छाया। हे परमात्मा हो, हम उसी मार्ग पर चले जिस प्रेम मार्ग द्वारा ब्रज से हमने रास की ओर प्रयाण किया था। वही मार्ग प्रमाणभूत है। प्रथम अवतरण में ब्रज से रास की ओर जाते समय
हमने संसार और शरीर को तुच्छ समझकर उन्हें छोड़ दिया था। अब इस प्रसंग को हृदय में धारण कर धनी के साथ उसी प्रकार का प्रेम करें। भक्त नरसिंह मेहता ने रासलीला का वर्णन नहीं किया। मेरे मन में यह इच्छा जागृत हुई है कि मैं उस लीला का वर्णन करूं। सदगुरु धनी के चरणों के प्रताप से मैं रासलीला का वर्णन करता हूं। आप इसे सुनिए। प्रियतम धनी सदगुरु द्वारा किया हुआ ब्रज और रासलीलाओं का वर्णन मैंने अनेक प्रकार से सुना, परंतु मैंने अपनी बुद्धि के क्षमता अनुसार उनमें से थोड़ा सा ही ग्रहण किया है। शरद पूर्णिमा की रात्रि, आश्विन मास, चंद्रमा संपूर्ण कलाओं के साथ अपनी छटा फैला रहा है। ऐसी रात्रि में श्री कृष्ण और गोपियों ब्रह्मात्माओं ने रासलीला की। मैं अखंड रासलीला का वर्णन कर रहा हूँ, जिसमें प्रवेश के लिए हम ब्रह्मात्माओं ने गोपिकाओं के रूप में पांव उठाया थे। ब्रजमंडल से प्रस्थान करते समय एक क्षण भी विलंब नहीं किया था। बेनु की ध्वनि सुनते ही हम तत्क्षण निकल पड़े थे। संध्या के समय श्री कृष्ण जी ने वृंदावन में जाकर बेनुनाद किया। उस समय हम सभी गोपियां जो जिस स्थिति में थी उसे ज्यों का त्यों छोड़कर निकल गई थी। उस समय सांसारिक बंधन हमारे लिए मार्ग में बाधक नहीं बने। अन्यथा उस समय ब्रज में गाय तथा गोप ग्वालों के आगमन के कारण ऐसा कोलाहल मचाता था कि कुछ भी सुनाना कठिन हो जाता था। किंतु हम गोपियों का चित्त सदैव श्री कृष्ण में ही मग्न होने के कारण उनका वेणुनाद ही हमें सुनाई दिया और हमारे चित्त व्याकुल हो उठे, जबकि दूसरों को तो केवल श्रवण सुख ही प्राप्त हुआ। कई सखियां गौ दोहन कर रही थी। उनके हाथ में दूध दोहने के पात्र थे। जिस समय श्याम की बंसी बजी, उसे सुनते ही दूध के पात्र तत्क्षण हाथ से गिर पड़े। कोई एक सखी तो अपने गृह कार्य में लगी हुई थी। पति और ससुर उसके सम्मुख खड़े थे, किंतु बंसी की ध्वनि सुनते ही वह शुद्धि बुद्धि खो गई थी और उनकी उपेक्षा करती हुई चली गई, क्योंकि सखियों ब्रह्मात्माओं की स्नेहपूर्ण दृष्टि में श्याम सुंदर की छवि ने स्थान बना लिया था। कोई सखी अपने पति के साथ बातचीत करते हुए खड़े खड़े अपने बालक को स्तनपान करा रही थी। अचानक प्रियतम धनी की बंसी का शोर सुनाई दिया और उसी समय बालक को वहीं छोड़कर चली गई। कोई सखी भोजन परोसने में लगी हुई थी। हाथ में थाली लेकर पकाया हुआ धान्य अन्न परोस रही थी। उसी समय श्री कृष्ण की बंसी बजी और भावावेश के कारण हाथ से थाली गिर पड़ी। इस अवसर पर घर से निकलते हुए किसी सखी का एक पांव भोजन के पात्र में पड़ गया तो दूसरे पांव पति के छाती को छू गया, क्योंकि बंसीनाद सुनते ही उसकी दृष्टि में सांसारिक वस्तुएं नहीं आई, अर्थात वे अपनापन खो बैठी थी। क्यों कोई एक सखी उतावली होकर निकलने समय अपने ससुर के साथ टकर गई तो वे गिर पड़े, क्योंकि उस सखी का शरीर द्रुत गति से वहां पहुंचना चाहता था और चित्त पहले से ही श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पास पहुंच गया था। माता पिता, पति, सास, ससुर और अपने रोते हुए बच्चों की भी इन ब्रजगोपियों का उन्हें परवाह नहीं की। बंसी की ध्वनि सुनते ही वे तत्काल पवन वेग से निकल पड़ी। जो सखी कपड़े निकालकर स्नान कर रही थी, वो अपने अंगों को संभाल न सकी। प्रियतम धनी के वेणुनाद को सुनते ही उसने अन्य सखियों की गति में भंगन नहीं होने दिया, अर्थात वह भी उनके साथ उसी गति से चलने लगी। कोई एक सखी पति के स्नान करवा रही थी। हाथ में लोटा लेकर पानी डाल रही थी। बंसी की सुमधुर ध्वनि सुनते ही पानी का लोटा पति के अंग पर गिरा। व्याकुल चित्त होने के कारण मुख से कुछ भी बोल न सकी। इस प्रसंग को सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत में गोवर्ष पद कहा है। जिस प्रकार गाय के बछड़े के चरण चिन्ह में भरे हुए पानी को लांघने में कोई कठिनाई नहीं होती, उसी प्रकार संसार सागर को
पार करने में गोपियों को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई। संसार के सभी बंधनों को उन्हें तिनके के समान तुच्छ समझकर टुकड़े टुकड़े कर डाले। यद्यपि गोपियां सांसारिक कार्य कर रही थी, तथापि उनके मन में संसार का मोह लेस मात्र भी नहीं था। इसीलिए माया के बंधनों को तोड़कर मुक्त होने में उन्हें थोड़ा सा भी विलंब नहीं किया। ऐसे गतिविधि स्पष्ट रूप से तामस स्वभाव वाली सखियों की थी। कई सखियां श्रृंगार कर रही थी। उनके कानों में जब बंसी की ध्वनि पड़ी तो शीघ्रता में चरणों के आभूषण कान में और कान के आभूषण पैर में पहन लिए। एक आंख में अंजन किया तो दूसरे आंख बिना अंजन की ही रह गई। बंसी की ध्वनि सुनते ही पश्चात राजस स्वभाव वाली सखियां घर में कैसे रह सकती थी। राजस स्वभाव वाली सखियों ने आंखें उठाकर चारों ओर देखा। यदि वे विचार करने लगती तो विलंब होने की संभावना थी। तामस स्वभाव वाली सखियां सबसे पहले निकल गई थी। राजस सखियों ने भी उनका अनुसरण किया। सात्विक स्वभाव वाली सखियों ने बाहर निकलने का विचार किया ही था कि उनके लिए द्वार ही बंद कर दिया। परिवार के सदस्य और अन्य परिचित व्यक्तियों से मिलकर उनके पतियों ने उसका मार्ग रोक लिया। जब सात्विक स्वभाव वाली सखियां मन में विचार करने लगी कि ये दुष्ट लोग हमारे मार्ग में रुकावट बनकर क्यों आ गए, उन्हें क्या इस बात का पता नहीं है कि हमारे प्रियतम पति तो श्री कृष्ण है, फिर ये हमें किस लिए वृंदावन जाने से रोक रहे हैं। सात्विक स्वभाव वाली सखियों कहती हैं, ऐसे संसार को धिक्कार है, इसमें अब तक आग क्यों नहीं लग गई। इस समय गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण वियोग का विरह और अन्य परिवार जनों के प्रति क्रोध तामस दोनों एक साथ प्रकट हुए। तब उन्होंने शरीर को त्याग दिया। इस प्रकार इन सखियों की आत्मा निकलकर तीव्र गति से वृंदावन पहुंच गई। उन्हें क्षण मात्र का भी विलंब नहीं हुआ। सचमुच ब्रह्मात्माएं प्रियतम श्री कृष्ण के बिना कैसे रह सकती है। इन सात्विक आत्माओं ने योग माया द्वारा रचित रासमंडल में पहुंचकर राजस और तामस वृत्ति वाली सखियों के साथ दिव्य श्रृंगार किया। ब्रजवधुओं की कुमारिकाओं का वर्णन सुखदेव जी ने नहीं किया। सुंदर साठ के मन में इनके विषय में संदेह क्यों रहने दूं, इसलिए ब्रह्मात्माओं और कुमारिकाओं का अलग अलग वर्णन करता हूँ। जितनी कुमारिकाएं कार्तिक स्नान कर रही थी वे ब्रह्मात्माएं नहीं थी। वस्त्र हरण कर श्री कृष्ण ने उनकी लज्जा का भी हरण किया और अखंड रासलीला में साथ खेलने का वचन दिया। इन कुमारिकाओं की परात्मा अक्षरधाम में नहीं थी। श्री कृष्ण के प्रति उनका अधिक प्रेम होने के कारण उसी प्रेम बल से उन्होंने श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त की और रासलीला में परमात्माओं के शरीर में प्रवेश कर अपनी मनोकामनाएं पूरी की। ब्रह्मात्माएं ब्रज से अत्यंत उत्सुकता से दौड़कर आई थी। इसी शरीर के माध्यम से रास खेलने की उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। रास मंडल में पहुंचते ही योग माया उनके सम्मुख आई और उसने युक्ति पूर्वक सब परमात्माओं को नवीन श्रृंगार धारण करवाया। श्री इंद्रावती के रूप में स्वामी जी कहते हैं, हे मेरी धाम की अंगनाओं, सुनिए, योग माया के इस अनुपम अलौकिक दिव्य ब्रह्मांड को ध्यान पूर्वक देखिए। योग माया द्वारा किया गया अंगनाओं के दिव्य श्रृंगार का वर्णन मैं कैसे करूं। मैंने अपने सदगुरु धनी श्री देवचंद जी के दिव्य वचनों को सुना और अपनी बुद्धि के अनुसार उन्हें ग्रहण किया। सर्वप्रथम मैं श्यामा जी के अलौकिक श्रृंगार का वर्णन कर रहा हूँ। अन्य सभी ब्रह्मात्माओं के श्रृंगार को भी इसी प्रकार समझना। मैंने अपने सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के दिव्य वचनों को सुना और अपनी बुद्धि के अनुसार उन्हें ग्रहण किया। सर्वप्रथम मैं श्यामा जी के अलौकिक श्रृंगार का वर्णन कर रहा हूँ। अन्य सभी परमात्माओं के श्रृंगार को भी इसी प्रकार समझना। चौपा 31 प्रकरण 5 चौपा 178। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास को 6वां प्रकरण राग धन्यासरी श्री ठकुरानी जी को श्रृंगार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
अखण्ड स्वरूपनि अस्थिर आकारे शोभा गणवे करिने स्नेह जोई जोई वचन अनुकै ऊँचा पण नआवे बानी माइत्य शोभा श्रृंगार श्यामाजी नय निरखुजी ये शोभा न आवे बानी माए पण सात माते के बानी ये लीला सात नरुडे मर माडवा तो मैं सबद मानी चरण अंगुठा अति भला पासे कोमल आगलियो सारा रंग तो अति रलिया मन दिसे न कहिरा तना जलकार हिरा तिपन त्यह जब मना आजीव्या त्यहाँ न पहुँचाए आनी जीवाए जो न कहूँ सातने तोरुडे प्रकाश केम थाए फणा तो रंग पतंग छे कांकसा नसो निर्मल निर्धार कुकुम रंगे पानी शोभे शरण तली बलि सार लांकटो दिसे अति लय कटो रेखा शोभिता अति पाए टाकन गुतिने काँडा कोमल पीडिते बर नबी न जाए कुंदन केरा अनबाट सोए बिचुडा करे थमकार मानक मोतीने नीला पाना जुगते अति जडाओ कामी कडला रन जन बाजे कुंगरी तना गमकार हेम तना बाला माए गतिया चाँदर तना जमकार काबिए नंगा आसमानी फूल बेला जुगते कुंदन जडाओ जडाओ लाल रंग नीला पीला कडले शोभा अति थाए कुंगार डिनो घाट जुगतनो कोरे करडा कुंदन माए मोती परत दिसे मंदिर जडिया नीला नंगा चाँजरिया एक जुई जुगतना कोरे लाल जडाओ कागरी एक हार बेहिरा तनी बिजी मध्ये दर्पण रंग दोरी भूषण चरणे शोभन्ता अनि बोलन्ता रसाल जुजबी जुगतन जबेर जदिसे करे ते अति जलकार वस्त्र केनी पेरे बर नभु यता साएर अति स्वरूप मारा जीवनी केव न बाजवा हूँ तो कहूँ गजा सारू कुप नीलिति लाई नो चरनियो अनि माय कसब निभात कोरे कोरे कागरी श्रीन्द्रावती जुए करी खन्त कागरी केरी जुगत जोइए दर्द करिने मन मानक मोती हीरा कुण्डन नीलाती पाँच रतन भात तो बलि पेरे बर नभु माए बेला सोनेरी सार बस्तर समिएल बनिएल दिसे नौ सुझे कोहे तार अनेक बिधन फूल ज दिसे माए जबेर तना जलकार नाडी तो अति शोभा डरे जेमा रंग दिसे अग्यार नीलो पिलो सेट सिन्दुरियो माए कसबनी भाट श्याम गुलालियो अने केसरियो माए जामुते रंगनी जाट जुगत एक बलि जुई छे उभी लाखी लिवोइनी डोरा मानक दे द्रुत करे ने जुए सोवित बने कोरो चिन चरनिए जोइए माए बेला मोती जल कंठ राति नीली चुनी कुण्डनमा फली पेरे माए बलन्त हे उपर जे शोभा डरे काहीँ त्यानो न लावे पार अंग चरनीय प्रगत दिसे साडी माए सिंगार छुतक छापा कुण्डन केरा साडी सिन्दुरिए रंग हिरामा अनेक मोती लसनिया मध्ये पाँच बानी नंग शोभाटो कणिए सुहामनी जो दृढ करी जोए मन चिना बस्तर ने अति उत्तम कानिए दोरे टुण माए मोती कोरे कसबी त्रिजी नीली चुनी सार अनेक विधनी बेला जो शोभे छेडे करे झलकार सुन्दर लाङ्क सुहामणो वासु दिसे साडीमा अङ्ग बेनतले कञ्चुकी निकसो जुगते मो सोए बन्द अङ्गनो रङ्ग निरख्यो न जाए क्याए न माए क्रण क्रान्त पेट पासा उर कण्ठ निरखन्ता इन्द्रावती पामे स्वान्त अङ्गनो रङ्ग अझ वास धरे त्यहाँ श्याम चोली स्वभावे सुन्दर सर्वे श्रृङ्गार स्वभावे त्यहाँ लहेर भूषण क्रण आवे कस कसती चोलिने कथन पयो धरा पिला खडपा शोभन्त कस थामे जे कागरी त्यहाँ नीला जबेर झलकन्त भरत पली पेरे शोभित काहीँ पच रङ्ग चुनी सार अनेक विधना फुल बेल खस बोए तन बेकार कञ्चुकी जडाओ छे जुगत जुजबी उपर आवरण बलि भात सुन्दर स्वरूप जोई जोइने मारो जीव ठाए निरान्त कण्ठ केनी पेरे बर नभु मारा जीवने नथी काहीँ बल पाँच हार त्यहाँ प्रगत दिसे शोभित डोरे बल एक हार हिरा तणो
बीज 5 वरन रतन त्रिजो हार मोती निरमलन काहीँ चौथो हेम कञ्चन हेमतनु हार जुइरे जुगतनु नौ सर नौ पातली जडाओ हिरा 5 रतन मोती माय मानक निलभी उतरी 3 सर शोभन्ती काहीँ दोरो जडित अचम्ब हुके निपेरे बर नबु मारी जिब्या अने अङ्ग कञ्चुकिना काठला उपर कोरे काहीँ डोरे तेज अपार सात रङ्गना नङ्ग पादरा जुत करे जलकार माए मोती मानक हिरा पानाने पुखराज कुन्दन माए रतन नङ्ग झलके रमबा सुन्दरी करे साज काँचले मानकने बलि मोती कुन्दन माए पाना नङ्ग छिडतनी चारे सरस सोभे कोही दात बसेक नरङ्ग ए उपर बलि निरकिने जोइए टो कण्ठसरी बलि गई अङ्ग कण्ठसरी केरी कली जुजबी काहीँ जुजबाचे त्यहाँ नङ्ग कण्ठसरी जडाव जुगतनी माई राति निली जबे रौनी हार सकल श्रृङ्गार श्यामाजी ने शोभे कुण्डनमा मोती जलकार नख ठकी कर बर नभु या जुगत अति सार आगलिय अङ्गुठा कोमल नख हिरा तना जलकार छिनिरेका लिए दिसे पहुँचा शोभित पतङ्ग आगलिए बिसा बिसा दिसे कोमल कलाई अति रङ्ग बिती चढाओ छे छ आगलिए सातमी अङ्गुठी अति सार आबलियो ने फरता पाना दर्पणमा मुख जलकार बेबिचिने हिरा मोती बिजी बेरङ्ग बेरतन 5 रङ्गनी 5 एकने करडा कञ्चन पहुँचिने नव घरी दिसे उपर उचा नङ्ग मानक मोती पाना कुण्डन यसोभे पहुँचिन नङ्ग नव घरिने निर्मल मोती हिराने रतन कुण्डन माए पाना पुखराज चुड माए नव रङ्गन नङ्ग जुजवा त्यनाते जुजवा रूप हुमारी बुद्ध सारो बर नभु पनया चे अद्भुत निलबी निलसनिया शोभित पानने बलि लाल मानक मोती हिरा कुण्डन माय रतन तन जलकार कोणी आगल काकनी जाम्बु रङ्ग नङ्ग जडाओ कुण्डन ना कर करिया शोभे जोत करे अपार मोहलिए मोतीने कागरी नीली राति चुनी कुण्डन बेलमा हिरा हार दिसे इन्द्रावती दुए दृढ मन सुन्दर निशोभे एका जुगते क्षण बाजेर साल चुडकेरा छापा अति शोभे उर पर लतके माल गाल टणो रङ्ग कय न जाए अधुर परवाली नेपाट दन्त शोभे रङ्ग दाढी मनी कलियो हरवती अधुर बचे लाङ्क मुख चौक शोभित अति माननी अनि झलके काँडे झाल जडाओ मानक मोती ने हिरा कुण्डनमा पान लाल नासिका बेसर लाल मोती लटके आँकडिए अञ्जन सोए पापन चलबे ने पिउजिने पेके चतुराइए मन मोहे नैना चपल अति अनियाला अनि रेखा शोभित माए लाल बेहोगमा ब्रेकुतिनी शोभा तिलडी ते मध्ये गुलाल मारा साथ सुन एक बाटडी आस्वरूप केम वरन बाए एक भूषण तनि जो भात तमे जुव तो आणे देह जीवन खमाए एक बेसर उपर लाल जदिसे ते लाल कनुन लाभे पार जेतना माए मिठा फरी भले एटले दिसे झलकार खितलडी जडाओ भली पेरे माए लाल हिरा सुचङ्गा मानक मोती नीला पाना माए 5 बानी नङ्ग करण लवने जे शोभा डरे उपर साडी नि कोरे सन कटडा माए पिउजिने पेके आदि दृष्टि हेरे नीलवट बेना चोकडो 5 मोती ता शोभे लाल 5 कुण्डन माए शोभित जोई जोइने जीव ठोबे पतली सामी छ फुली शोभे मध्ये सेडुरे निरेखे बेउगमा मोती सर शोभे इन्द्रावती खान्त करी पेखे चार फुली ते फरती दिसे बेफुली अनियाली मध्ये लाल मोती फरन्ता पाना ए जुगत क्यान भाली राख लडीमा रतन नङ्ग झलके हिरा पान बेउ पात मानक मोती फरता दिसे बेन चुए गुती अख्याट 5 रङ्गन 5 फुमक स्वयमूल बेन ने बन्द गोफन दे फुमक जे दिसे त्यान श्याम कसबी रङ्ग गोफन दे गुङ्गर दि फरती अनि बोलन्ती र साल फरता पान डोरी बन्द शोभे बेनले के जेम ब्याल
मुख माए बीड़ी तंबोलानी मंड मकर कलड़ शोभे इंद्रावती नयन सुंदर के अति घनु કરીને लोभे मुखाडु निहाले अंगूठीमा शोभा धरे सरवांग सनकटड़ श्रृंगार स्वभावे श्री कृष्ण जी केरी हरदंग मुखती बानी जे वो चरे काई ये स्वर अति रसाल एक मात्र कनका जोरु दे आवे तो थाए फेर सुफल संसार सुखम स्वरूप ने उन्मद अंगे केनी पेरे ये वर्ण बाए मारी बुद्ध सारो वर्ण बु इंद्रावती लागे पाए पाँव बरे एक बाट सु श्यामाजी शोभे ये निचाल जीव निरकी ने नेत्र थरे इंद्रावती लिए रंग लाल ये श्रृंगार जोइए જ્યારે નિરખી ત્યારે શું કરે માયાનો પાસ સાત સકલ તમે જોજ બિચારી ભલી શ્યામા તે અભ્યાસ ખ્યાત સુંદર શોભા શ્યામાજી કેરી નિરખી નિરખીને નિરખુંજી અંતર તાલીને એક થયા ઇન્દ્રાવતી કહે હું હરખુંજી ઇન્દ્રાવતી કહે હું હરખુંજી સુંદર શોભા શ્યામાજી કેરી નિરખી નિરખીને નિરખુંજી अंतर तालीने एकठाया श्री इंद्रावती कहे हूँ हरकुंजी श्री इंद्रावती कहे हूँ हरकुंजी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई 71 प्रकरण 6 चौपाई 249 रास ग्रंथ को 60 प्रकरण को हिंदी छाया। इंद्रावती के स्वरूप में स्वामी जी कहते हैं कि मैं अस्थिर आकार अस्थाई 5 तत्वों के शरीर द्वारा श्यामाजी महारानी के अखंड स्वरूप की शोभा सुंदरता का प्रेम पूर्वक वर्णन करता हूँ। इसीलिए चुन चुन कर श्रेष्ठ शब्दों का उपयोग करना चाहता हूँ, तथापि वह दिव्य शोभा शब्दों में वर्णित नहीं होती है। श्यामाजी के वह दिव्य शोभा और श्रृंगार को मैं अंतर्दृष्टि से देखता हूँ। श्यामा जी के इस अलौकिक शोभा का वर्णन शब्दों में नहीं समाता, तथापि अपनी अंगनाओं के लिए इसका वर्णन करना आवश्यक है। इस लीला और स्वरूप को उनके हृदय में विराजमान करवाने के लिए ही मैंने शब्दों के माध्यम से वर्णन करने का प्रयत्न किया है। श्यामा जी महारानी के श्री चरणों का अंगूठा अत्यंत सुंदर है। उसके पास कोमल अंगुलियां हैं। अंगूठे और अंगुलियों का रंग अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। नखों की अनुपम आभा तो हीरों की भांति चमकती दिखाई देती है। यह हीरा भी उसी अखंड भूमिका का है। यह लौकिक वाणी वहां तक नहीं पहुंचती। यदि मैं लौकिक जीवा से इसका वर्णन न करूं तो सुंदर साथ के हृदय में उसके ज्ञान का प्रकाश किस प्रकार होगा। श्यामाजी महारानी के चरण का पंजा लाल रंग का है। 2 अंगुलियों के बीच का भाग तथा नसें भी अत्यंत सुंदर स्वच्छ और कोमल है। पांव की पहनी तलवे का किनारा मनोहर कुमकुम वर्ण की है तथा चरण तल का भाग तलवा अत्यंत सुंदर श्रेष्ठ है। चरण के तलवों के अर्धवृत्त भाग अत्यंत तेजोमय एवं चमकीले हैं। उनकी रेखाओं की शोभा अनुपम है। एड़ी के ऊपर के भाग में स्थिति घुत्ती और कैड़ा अत्यंत कोमल है। पिड़ली की शोभा का वर्णन तो हो ही नहीं सकता। चरण कमल के अंगूठे में सोने के बिछुए स्वायमान है और उनके झंकार सुनाई देती है। ये बिछुए मानिक मोती नीलम और पन्ना से युक्ति पूर्वक सुजड़ित है। पैरों में कांबी कड़ों की झनकार हो रही है। घुंघरों की खमक सुनाई पड़ती है। यह घुंघरी सोने की तार को ऐंठ कर बनाई हुई है। सोने की तार में पिरोए हुए घुंघरों का मधुर स्वर छनक रहा है। कांबी कड़ों में आसमानी रंग के मणि नंग जड़ित है और सोने में फूलवेलियों की नक्काशी कर प्रवीणता से कलाकृत की गई हैं। कड़ों में भी लाल नीले पीले रंगों के मणि नंग जड़े हुए हैं। इनकी शोभा अति सुंदर है। कुंगरी के गठन भी अत्यंत युक्तिपूर्वक हैं।
उनके अंत भाग में सोने की छोटे छोटे दाने जड़ायमान हैं और चारों ओर मोती डाले हुए हैं। उनके मध्य में नीला नंग जड़ा हुआ है। झांझरी भूषण की भी अलग ही युक्ति से गड़े हुए हैं। इनके छोर पर लाल रंग प्रवाल जड़े हुए हैं। उसमें से एक डुहरे हीरे की माला है और दूसरी माला के बीच दर्पण रंग की डोरी है। ये भूषण चरण कमलों में शोभायमान है और उनमें से मधुर ध्वनि झंकृत होती है और भिन्न भिन्न प्रकार के जवाहरत का उनमें दिखाई देते हैं। वह अत्यंत प्रकाशमान है। श्यामाजी महारानी के अंग के वस्त्रों का वर्णन मैं किस प्रकार करूं? उनके अलौकिक स्वरूप का वर्णन तो सागर के समान अगाध है। मेरे जीव की जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए मैं अपने कुप मंदुक सदृश बुद्धि के अनुसार वर्णन करता हूँ। श्यामाजी के लहंगे का रंग नीला और लाही मिश्रित है और उसमें सोने की तारों से भांति भांति की चित्रकारी की हुई है। उसकी किनारे बेलपुत्तों से भरी हुई है। श्री इंद्रावती बड़ी चाह से उसे देख रही है। लहंगे की किनार में जो कांगरी लगी हुई है उसकी युक्ति को हम देखते ही रहते हैं। मन को एकाग्र करके यदि देखे तो मानिक, मोती, हीरा, सोना, नीलम और पात, हरितमणि, इन रत्नों का जड़ाव अत्यंत अनुपम है। इस जड़ाव की कार्य कुशलता का ठीक से वर्णन कर रहा हूँ। उपरयुक्त रत्नों के अंतराल में सोने की तार की बेलें भरी हुई हैं। इन वस्त्रों की तरह की बेलों को इस प्रकार गुथा गया है कि उनकी तार के तंतु ताने वाने दिखाई नहीं पड़ते, अर्थात वस्त्रों के साथ मिले हुए हैं। इस लहंगे में अनेक प्रकार की फूल बेलियां दिखाई देती है, जिसमें भांति भांति जवाहरत झलक रहे हैं। इसकी डोरी में नाड़ी में 11 रंगों की शोभा मिश्रित है, इसलिए वह डोरी भी अत्यंत सुंदर दिखाई देती है। इस डोरी में नीले, पीले, सफेद और सिंदूरी रंग के बीच बीच के बेलबुत्ते हैं। श्याम, गुलाबी तथा केसरिया रंग भी शोभायमान है। बीच बीच में जामुन रंग की झलक दिखाई देती है। इस डोरी में एक और भी युक्ति है। इसके दोनों छोरों पर नीचे से ऊपर तक लाखी और नींबू रंग के धागे गूंथे गए हैं। ध्यान मग्न होकर इन दोनों छोरों की शोभा देख रही है। इस लहंगे के पांच पांच के चुन्नत देखे तो उनमें मोती से भरे हुए बेल बुतों की कला झलकती दिखाई देंगी। लाल और नीली रंग के नग सोने में इस प्रकार मिश्रित हो गए हैं कि उनकी शोभा अपरिमित दिखाई देती है। इसके ऊपर पहनी साड़ी की शोभा का पार नहीं हो सकता। श्री श्यामा जी के पहनी हुई साड़ी निर्मल और पारदर्शक होने के कारण उनके श्रीअंग, लहंगा तथा श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देते हैं। सिंदूरी रंग की साड़ी में अलग अलग आकृति के सुनहरे बूते छाप जड़े हुए हैं। हीरा, मानिक, मोती और लसनिया तथा बीच में 5 प्रकार के नग जड़े हुए हैं। अच्छी तरह से देखे तो साड़ी की शोभा अत्यंत सुंदर है। वो अत्यंत महीन और कोमल है। इसके किनारे पर 3 धारियां शोभा दे रही है। मोती में बीच में मोती तथा किनारे पर कसीदा चढ़ा हुआ है। मोती तथा कसीदे के साथ नीले रंग की रत्न कनिकाएं जड़ायमान है। साड़ी में नगों की सजावट से पूर्ण अनेक बेलियां शोभायमान है तथा दोनों छोर जगमगा रहे हैं। साड़ी में से पीठ का भाग दिखाई देता है। पीठ का भाग अत्यंत कमनीय है। चोटी के नीचे पीठ पर चोली का बंधन सुंदरता से बंधा हुआ दिखाई देता है। श्री श्यामा जी के अंगों से कोटि सूर्य के समान कांति प्रकट होने के कारण उनके श्री अंगों का रंग देखा नहीं जा सकता। उनके पेट, पसलियां, वक्षस्थल एवं कंठ की शोभा देखकर इंद्रावती ने अत्यंत सुख शांति का अनुभव किया। उनके अंगों का वर्णन दीप्यमान प्रकाश की तरह है। उन्होंने श्याम रंग की कंचुकी धारण की है।
उनके सब श्रृंगार उन्हें अत्यंत शोभा देते हैं। आभूषण के रत्नों से निकलने वाले किरणें चारों ओर झिलमिला रही है। कठोर पयोदर पर कसी हुई कंचुकी धारण की है, जिससे पीले रंग के जोड़ शोभा दे रहे हैं। कंचुकी के बंधन के साथ ही जवाहरत जड़े हुए हैं और उनका नीलम नीलमणि का प्रकाश फैल रहा है। कंचुकी में जो कसीदे का काम हुआ है उसमें पचरंग बेलों की चुन्नत कड़ी हुई है। उनमें भांत भांत की फूल और बेल कड़ी हुई है, उनसे मधुर सुगंध आ रही है। कंचुकी में भांति भांति के नंग युक्ति पूर्वक जड़े हुए हैं। इसके ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण सुंदर ढंग से पहने हुए हैं। श्यामा जी के इस सुंदर स्वरूप को देख देख कर मेरी आत्मा को शाश्वत शांति और अखंड सुख मिलता है। श्यामा जी के कंठ की सुंदरता का वर्णन किस प्रकार करूं, क्योंकि इसका वर्णन करने की शक्ति मेरे जीव में नहीं है। तथापि सुंदर साथ के संतोष के लिए कह रहा हूँ। उनके गले में 5 मालाएं सुशोभित हैं। उनके कसे हुए डोरे अत्यंत शोभा देते हैं। श्री श्यामा जी के गले में जो 5 हार हैं, उनमें से एक हीरे का, दूसरा हार 5 प्रकार के रत्नों से जड़ित, तीसरा हार निर्मल मोतियों का और चौथा हार शुद्ध सोने का बना है। सोने के हार की शोभा की निराली है। वह 9 लड़ियों और 9 पत्तियों से बना हुआ है। उसमें हीरे, पास, रत्न, मोती, माणिक्य और नीलम जड़े हुए हैं। उन हारों में से 3 लड़ियां निकलकर कंठ में शोभायमान है। उनके सुनहरे डोरे भी अलग प्रकार से गुथे हुए हैं। उनका वर्णन मैं किस प्रकार करूं। मेरे जीवा इस नश्वर शरीर की ही तो है। कंचुकी के ऊपर के किनारे से लगे हुए बंधन के डोरे चमक रहे हैं। उनमें जड़े हुए 7 रंग के नग अति दिव्यमान होकर चंचलाकार कर रहे हैं। उनके बीच माणिक्य, मोती, हीरे, पन्ने और पुखराज के नग सोने में जड़े हुए चमक रहे हैं। इस प्रकार रास उत्सव के लिए श्यामा जी श्रृंगार कर रही है। कंठमाला में माणिक्य और मोती के नग लगे हुए हैं और सोने में पन्ना नग जड़ा हुआ है। हारे में कसी हुई 4 लाडलियां शोभायमान है। उनमें विशिष्ट धातु का रंग झलक रहा है। इस कंठुले कंठमाला को यदि ध्यान पूर्वक देखे तो यह कंठुला सरक कर कंठ के साथ मिला हुआ दृष्टिगोचर होता है। कंठुले की कड़ियों की शोभा अलग ही प्रकार की दिखाई देती है। उनके नग भी निराले हैं। कंठसरी युक्ति पूर्वक जड़ायमान है। बीच में लाल तथा नीले जवाहरतों की पंक्ति है। सोने की लड़ियों में पिरोए हुए मोती नीचे लटक रहे हैं और शोभा में वृद्धि कर रहे हैं। इस प्रकार श्यामा जी का समग्र श्रृंगार शोभायमान है। अब श्यामा जी के नख से लेकर हाथ तक का वर्णन करता हूँ। वह शोभा अत्यंत उच्च प्रकार की है। हाथ के अंगूठे तथा अंगुलियां कोमल हैं। उनके नख हीरों की भांति चमक रहे हैं। हथेली में बारीक रेखाएं दिखाई देती हैं। उनके हाथ के पहुंच से पृष्ठभाग लाल रंग के शोभायमान है। अंगुलियों पर अंकित रेखाएं बीचों बीच दिखाई देती हैं तथा कलाई अत्यंत कोमल और कमनीय है। कमल के समान दोनों हाथों की 6 अंगुलियों में रत्न जड़ित अंगूठियां धारण की हैं। 7वीं अंगूठी जो अंगूठे पर धारण किए हैं वह अनुपम है। इस अंगूठे में बीच बीच शीशे के छोटे टुकड़े तथा पन्ने जड़े हुए हैं। इन शीशों के टुकड़े में श्री श्यामा जी की मुखाकृत चमक रही है। प्रथम 2 अंगुरियां हीरे और मोती की हैं। इसके बाद की 2 में 2 रंग के 2 रत्न चमक रहे हैं। एक अंगूठी में 5 नंग जड़े हुए हैं। 6 में 5 नंग जड़ा हुआ है। शेष 2 अंगुलियों में सोने के छोटे छोटे कड़े हैं। कलाई और नवगरी आभूषण सुंदर दिखाई देते हैं। उन पर ऊंचे ऊंचे नग जड़े हुए हैं। कलाई के आभूषण में माणिक्य, मोती,
पन्ना और सोने में जड़े हुए नग शोभायमान है। नवोगरी आभूषण में निर्मल मोती, हीरे और रत्न जड़े हुए हैं। सोने में पन्ना और पुखराज ये सुशोभित हैं, जबकि कलाई पर और रंग की चूड़ियां पहनी हुई हैं। ये जो नवरंग हैं उनके नग भी अलग अलग करके जड़े हुए हैं, इसलिए उनका रूप भी अलग अलग दिखाई देता है। मैं तो अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन कर रही हूँ, किंतु इसकी शोभा तो अत्यंत अनुपम है। इन चूड़ियों में नीलकांत, नीलवी और शुभ्र लसनिया रत्नों की नग शोभायमान है और उनके साथ साथ पन्ने और लाल नग भी जड़े हुए हैं। माणिक्य, मोती, हीरे आदि के नग सोने में जड़े हुए हैं और उनमें जड़े गए रत्न झलक रहे हैं। कुहनी के पास कलाई पर कंकन नाम का आभूषण धारण किया हुआ है। इसमें जामुनी रंग के नग जड़े हुए हैं। सोने के छोटे छोटे सुंदर दानों के कारण इसकी ज्योति अपार दिखाई देती है। कुहनी के मोहरी पर मोती और कांगरी लगी हुई है। इसके ऊपर नीली, लाल और सुनहरी बूटियां मड़ी हुई है। इस मोहरी पर बेलों की बुनाई की हुई है, जो हीरे की हार के समान दिखाई देती है। इंद्रावती इसकी शोभा दृढ़ मन से निहार रहे हैं। स्वरूप और श्रृंगार की शोभा अत्यंत चारुता से अभिव्यक्त हुई है। ये चूड़ियाँ मधुर झंकार करती हैं और उनमें बेल, फूल आदि शोभायमान है और गले में माला लटक रही है। श्यामा जी के गुलाबी गालों का लावण्य वर्णनातीत है। उनके अधर प्रवाल के समान लाल रंग के हैं। दांतों की शोभा अनारदानों की पंक्ति जैसी सुंदर है। ठोड़ी और ओठों के बीच में छोटा सा गड्ढा है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। श्यामा जी के दिव्य मुखाकृत अत्यंत सुशोभित हैं। कानों में झाले पहने हुए हैं और वे प्रकाशमान है। इन झालों में माणिक्य, मोती, हीरे आदि जड़ायमान है और सोने में पन्ने और लाल नग जड़े हुए हैं। नासिका के अग्रभाग में नथुनी पहनी हुई है जिसमें लाल मोती लटक रहा है। आंखों में काजल शोभा दे रही है। अपनी पलकों को मधुर रूप से मटकती हुई वे अपने प्रियतम को देखती है तथा इस चातुर्य द्वारा अपने प्रियतम श्री राधा जी का मन मोह लेती है। उनकी आंखें नुकीली और चपल हैं। इनमें लाल रेखाएं शोभायमान हैं। दोनों आंखों पर स्थिति पवों की शोभा निराली ही है। ललाट के मध्य भाग में लाल गुलाबी बिंदी दिखाई देती है। हे परमात्मा हो, एक बात सुनिए। श्री श्यामा जी के लावण्य और रूप माधुर्यपूर्ण स्वरूप का वर्णन मैं कैसे करूं? अरे, एक आभूषण की शोभा की झांकी ही दिखाई दे तो इस देह में जीव रह नहीं पाएगा। नथुनी पर पिरोए हुए लाल नग की दृश्यमान लालिमा अपरिमित है। जहाँ तक दृष्टि पहुँचती है वह सब लालिमा से झलकता दिखाई देता है। कान में जो खिटलड़ी आभूषण पहना हुआ है उनमें अनेक नग बड़ी चारुता से जड़े गए हैं। उनके बीच में लाल नग तथा हीरे सुंदरता बढ़ा रहे हैं। उनमें माणिक्य, मोती, नीलम, पन्ना आदि 5 प्रकार के नग जड़े हुए हैं। कान के पीछे जो खाली भाग है वो शोभा दे रहा है। उसके ऊपर साड़ी की किनार सुशोभित है। श्यामा जी घूंघट के अंदर से अपने प्रियतम को तिरछी दृष्टि से निहार लेती है। ललाट के ऊपर टीका लगा हुआ है। इस टीके में 5 मोती झलक रहे हैं। लाल प्रवाल तथा 5 नग सोने में जड़ित होकर शोभायमान है। इसे देखकर जीव उसमें स्थिर हो जाता है। मस्तक पर माघ के दोनों तरफ केशों को 2 पंक्तियों में समारा गया है। सामने से देखने पर यहाँ 6 फूल सुशोभित लग रहे हैं। दोनों ओर 3-3 फूली और बीच में लाल सिंदूर से रची हुई माघ है। दोनों तरफ मोती से बनी हुई मालाएं लटक रही हैं। इस अलौकिक शोभा को इंद्रावती अति चाव से देख रही है। इस माघ में 4 गोलाकार फूल
आभूषण के रूप में लगे हुए हैं। 2 फूल नुकीले दिखाई देते हैं, बीच में लाल और मोती लगे हुए हैं और उनके चारों ओर पन्ने के नग लगाए गए हैं। इस प्रकार की शोभा और सुंदरता अन्यत्र दिखाई नहीं देती। चोटी में रत्न झलक रहे हैं और हीरे तथा पन्ने के नग दोनों ओर शोभायमान है। उनमें वर्तुलाकार जड़े हुए मानिक मोती चारों ओर घूमते हो ऐसा लगता है। चोटी सुगंधित इत्र डालकर गूंथी गई है। इसमें कहीं किसी भी प्रकार की कमी दिखाई नहीं देती। श्यामा जी के चोटी पर 5 रंग के फुटने हैं। वे बेनी के मूल में शोभा दे रहे हैं। चोटी गूंथीने में से जिन फुटनों का उपयोग हुआ है वे श्याम और कुसुम्बी रंग के हैं। बेनी बंद में सुंदर घुंघरियां लगी हुई हैं। वे मधुर स्वर से सनकती हैं। जिस डोर से चोटी बांधी हुई है उस पर पन्ने की नग शोभा दे रहे हैं। यह चोटी काले नाग की तरह बल खाती है। मुख में तांबुल का बीड़ा है। मंद मंद हास्य उनके मुख की शोभा बढ़ा रहा है। इंद्रावती अपने आंखों से मुखारविंद की शोभा निरख रही है और हृदय में उल्लास धारण कर इस लोभ में पड़ी हुई है कि इसे देखती ही रहे। श्यामा जी जब अपना मुख अंगूठी में देखती हैं तो उनके सब अंग उल्लसित और विशेष शोभा से संपन्न हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी की यह अर्धांगना श्यामा जी जब घूंघट निकालती है तो उनका श्रृंगार विशेष रूप से दिव्यमान हो उठता है। श्यामा जी के मुखारविंद से जो वाणी निकलती है वो अत्यंत सुमधुर और रसपूर्ण है। यह स्वर और श्रृंगार की शोभा क्षण भर के लिए भी यदि हमारे हृदय में स्थिर हो जाए तो इस संसार में हमारा आगमन सफल हो जाए। श्यामा जी महारानी का स्वरूप चिन्मय है तथा अंग प्रत्यंग में मत भरा हुआ है। उसका वर्णन किस प्रकार किया जाए, तथापि मैंने अपने बुद्धि अनुसार वर्णन किया है। इस प्रकार इंद्रावती श्यामा जी के चरणों में वंदना करती है। श्यामा जी अनुपम और विशेष संतुलित चाल से चल रही हैं। उनकी यह चाल अत्यंत सुंदर है। इस शोभा को देखकर आंखों को शीतलता प्राप्त होती है। इंद्रावती उत्साह और प्रेम की लालिमा से लाल हो रही है। इस श्रृंगार की शोभा जब अंतर्दृष्टि से देखता है तो माया का प्रभाव क्या करेगा, आप विचार कर लीजिए। श्यामा जी पुनः सदगुरु श्री धनी देवचंद्र जी के रूप में साक्षात प्रकट हुई है। श्री श्यामा जी के स्वरूप की सुंदर शोभा श्री इंद्रावती बारंबार देखना चाहती है। इंद्रावती कहती है कि माया के आवरणों को हटाकर मेरे हृदय में श्यामा जी एकाकार हो गई है, इसलिए मैं हर्षित होती हूँ। श्री श्यामा जी के स्वरूप की सुंदर शोभा श्री इंद्रावती बारंबार देखना चाहती है। इंद्रावती कहती है कि माया के आवरण को हटाकर मेरे हृदय में श्यामा जी एकाकार हो गई है, इसलिए मैं हर्षित होती हूँ। चौपाई 71 प्रकरण 6 चौपाई 249। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।